ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستانی معیشت پر حالیہ سیلاب کے اثرات کو IMF کے جائزے میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ IMF کے دیرینہ اور تعمیری شراکت داری کو سراہا اور مختلف اقدامات سے IMF کی جانب سے پاکستان کی بروقت حمایت کا اعتراف بھی کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان IMF پروگرام کے مختلف اہداف اور وعدے نبھانے میں پیش رفت کر رہا ہے۔ پاکستانی معیشت پر حالیہ سیلاب کے اثرات کو IMF کے جائزے میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کرسٹلینا جارجیوا نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور بحالی کے مؤثر اقدامات کے لیے نقصانات کے تخمینے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کرسٹلینا جارجیوا نے وزیر اعظم شہباز شریف کے مضبوط میکرو اکنامک پالیسیز پر عمل درآمد کے عزم کی بھی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے صدر ورلڈ بینک کی ملاقات۔ ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا نے پاکستان کے اصلاحاتی اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر ورلڈ بینک کے صدر سے ہونے والی ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم نے عالمی بینک کے صدر کو حکومت پاکستان کی جامع اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کرونا اور 2022 کے تباہ کن سیلاب کے دوران پاکستان کے لیے ورلڈ بینک کی دیرینہ حمایت کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے آپریشنز کو آسان بنانے، نجی شعبے میں وسائل کو مزید متحرک کرنے، ورلڈ بینک کو تیز تر اور زیادہ مؤثر ترقیاتی شراکت دار میں تبدیل کرنے پر اجے کی قیادت کی تعریف کی۔ شہباز شریف نے ورلڈ بینک کے نئے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی بھی تعریف کی، جبکہ صدر ورلڈ بینک اجے بنگا نے پاکستان کے اصلاحاتی اقدامات کو سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے نیو یارک میں اسلامی ملکوں کے سربراہان سے ملاقات ہوئی ہے۔ تقریباً 50 منٹ جاری رہنے والی اس ملاقات میں غزہ سمیت مشرق وسطی کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ امریکی صدر کے ساتھ ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، قطر اور انڈونیشیا کے سربراہان شریک ہوئے۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کو انتہائی کامیاب قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ غزہ کے بارے میں ان کی عظیم رہنماؤں کے ساتھ یہ بہت اچھی اور کامیاب ملاقات رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کے علاوہ تمام بڑے پلیئرز سے ان کی یہ ملاقات بہت کامیاب رہی۔ ہم غزہ کی جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اسے ختم کر کے رہیں گے۔ ممکن ہے کہ یہ ابھی ختم کر دی جائے۔ غزہ کے معاملے پر اسرائیل سے بھی جلد ملاقات ہوگی۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب ایردوان نے بھی صدر ٹرمپ کی مسلم رہنماؤں سے ملاقات کو بہت مفید قرار دیا۔ خبر یہ ہے کہ IMF سے $7 ارب کے قرض پروگرام کی اگلی قسط کے سلسلے میں IMF کا جائزہ مشن کل سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا وفد پاکستان میں تقریباً 2 ہفتے قیام کرے گا۔ IMF مشن پاکستان کی معاشی صورت کا دوسرا جائزہ لے گی۔ تکنیکی مذاکرات میں جنوری سے جون 2025 کا ڈیٹا شیئر کیا جائے گا۔ حکام وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان IMF کے زیادہ تر اہداف پورے کر چکا ہے۔ پہلے تکنیکی پھر پالیسی مذاکرات ہوں گے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کارکردگی پر بھی بحث کی جائے گی۔ پالیسی سطح کے مذاکرات میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی شرکت کریں گے۔ مذاکرات کی کامیابی پر بورڈ کی منظوری سے $1 ارب کی اگلی قسط ملے گی۔ ستمبر 2024 میں طے پانے والے پروگرام کے تحت $2.1 ارب مل چکے ہیں اور دورے کے دوران موسمیاتی تبدیلی کے اقدامات میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ IMF RSF پروگرام کی مد میں $1.4 ارب کی منظوری دے چکا۔ کلائمیٹ فائننسنگ پروگرام کی فنڈنگ بھی EFF کی کارکردگی سے مشروط ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ CCD نے جس طرح امن و امان قائم کیا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ زمینوں پر ناجائز قبضے چھڑانے کے لیے قانون سازی لا رہے ہیں۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پیرا فورس کا قیام میرا خواب تھا جو شرمندہ تعبیر ہوا۔ عوام کے لیے آسانیاں فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے۔ پنجاب میں ایسے اضلاع بھی ہیں جہاں 0 کرائم ہے۔ جن اضلاع میں کرائم تھا وہاں اب لوگ کہتے ہیں امن ہو گیا ہے۔ رشوت کی کمائی میں برکت نہیں ہے۔ جتنی تیزی سے رشوت کی کمائی آتی ہے اتنی تیزی سے چلی جاتی ہے۔ کاروباری افراد جائز منافع کمائیں۔ جب منافع جائز حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو اسے روکنا میرا فرض ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو ظلم سے بچانا اور انصاف دلانا ہے۔ میرا خواب ہے کہ پنجاب ماں بیٹیوں کے لیے محفوظ ترین جگہ بنے۔ جن زمینوں پر قبضہ ہو جاتا ہے ان کے لیے الگ عدالتیں بنا رہے ہیں۔ خصوصی عدالتوں سے زمین پر قبضے سے متعلق کیس کا فیصلہ 90 دن میں ہوگا۔ بیواؤں اور یتیموں کی زمین پر قبضہ کرانے والوں کو 10 سال
सजा होगी। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है और अब गिनती का अमल जारी है। शहर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की आमद दिन भर ना होने के बराबर रही, जिसके बायस टर्न आउट इंतहाई कम रिकॉर्ड किया गया। इलेक्शन कमीशन के अमले की निगरानी में वोटों की गिनती जारी है, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। मजीद सूरत हाल से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक। ताहा मलिक बताएगा, वोटिंग का वक्त खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, देखें आज जो है वो कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का जो मार्का था वो सजा था। सुबह से ही हमने देखा कि तमाम जो मुतालिका पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर जो वोटर्स की तादाद थी वो थोड़ी हमें कम नज़र आई और दिन के अख्ताम तक जो वोटर्स की तादाद थी वो कम थी। बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो 10% के करीब जो वो वोटर निकल चुका है। इस वक्त अगर हम बात करें तो हम सोराब गोड के मुकाम पर मौजूद हैं, जहाँ पर जो है वो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का सजा था और यहाँ पर वाइस चेयरमैन की नशिस्त के लिए जो है वो इंतखाबात हो रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ इस वक्त जो है वो वक्त मुकम्मल हो चुका है और वक्त मुकम्मल होने के बाद जो है वो गिनती का वोटिंग के जो वोटर्स ने जिन्होंने गिनती दी वोट दिए उनकी गिनती का जो अमल है वो शुरुआत हो चुकी है। अब से कुछ देर के बाद ये बताया जा रहा है कि गैर अदमी और गैर सरकारी नताइज जो है वो हमें मौसूल हो जाएंगे। जी, कराची के 3 अजला गरबी, ईस्ट और किमाड़ी में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। कराची पुलिस की जानिब से इंतखाबात का कामयाबी इनेकाद। मजमूई तौर पर 1500 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। हमारे नुमाइंदे जीशान मलिक इस वक्त सोहराब गो टाउन में SP सिक्योरिटी अब्दुल बाकिर इनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी जीशान। जी बिल्कुल, आज कराची के 3 अजला जो है गरबी, ईस्ट और किमाड़ी के अंदर बल्दियाती इंतखाबात थे, बाई इलेक्शन थे, उनका जो कामयाब इनेकाद कराची पुलिस की कानून से आज हो चुका है। कराची पुलिस के जो एडिशनल IG कराची जावेद आलम भुट्टो की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो नफरी तैनात की गई थी, तमाम तर जिले जो पुलिस अफसरान थे वो आज अपने अपने इलाकों में काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए हैं। मजमूई तौर पर 1500 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार व अफसरान जो है वो दोनों अजला में अपनी ड्यूटी जो है उसके फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। कुछ एक जगह थी जहाँ पर औरंगी टाउन या मसिया का इलाका कह सकते हैं, वहाँ पर इंतहाई जो हसास वहाँ पर जो है वो कहीं बहस व तकरार और कुछ नरमी गर्मी के वाक़यात दिखाई दिए हैं। जहाँ ओवरऑल जो पोजीशन है वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अमन रही है। सब ये बताइएगा कि आज 1500 पुलिस के अंदर कैसा रहा माहौल? 300 जवान हमारे साथ लाए थे, 4 पोलिंग स्टेशन थी हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, ना कोई लाइन ऑर्डर का मसला हुआ। पीसफुल इलेक्शन हुआ, पीसफुल रिजल्ट सब देखने में आया। UC 8 का इलेक्शन है वो यहाँ पर इनकाद किया गया। दूसरे अजला में भी ताहम कोई बड़ा वाक़या रोनमा नहीं हुआ। इक्का दुक्का वाक़या, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इक्का दुक्का वाक़या औरंगी टाउन और बल्दिया के कुछ इलाकों में पेश आए थे, ताहम उसको भी ज़िला पुलिस अफसरान की जानिब से कंट्रोल कर लिया गया था। अब जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर सिक्योरिटी आज अब भी तैनात है, गिनती का अमल जो है जारी है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सैलाब से मुतासरा अजला के तलबा के लिए खुसूसी तालीमी पैकेज की मंजूरी दे दी है। इस पैकेज के तहत सैलाब से मुतासरा अजला के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फ़ीस माफ़ कर दी है, जबकि BS फर्स्ट ईयर के तलबा की दाखिला फ़ीस भी ख़त्म कर दी गई। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, शनियोट और कसूर के तलबा इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा इन अजला में कायम यूनिवर्सिटियों में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 रोज़ की तोसी भी कर दी गई, जबकि हाल स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 1 माह बढ़ा दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है ये इकदाम वालिदैन की माली मुश्किलात कम करने, नौजवानों को सहूलत देने के लिए किया गया। सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम मुतासिर नहीं होने दूंगी। उन्होंने यकीन दिलाया सैलाब मुतासरीन के हर मुमकिन मदद, जल्द बहाली, नुकसानात के अजाले के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तालुका टंडो आदम के गांव संजर जुनेजो पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के बानी रुकन और साबिक रुकन कौमी असम्बली रोशन दीन जुनेजो के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरहूम के साहबजादों MNA सलाहुद्दीन जुनेजो और गयासुद्दीन जुनेजो से मुलाकात की और इजहार अफसोस किया। मरहूम के भाइयों नूर मोहम्मद जुनेजो, मोहम्मद खान जुनेजो और भतीजे पार्टी के ज़िले जनरल सेक्रेटरी जहांगीर जुनेजो से भी दिली हमदर्दी का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रोशन दीन जुनेजो की बुलंदी दराजात के लिए फातिहा खानी की और लवाहिकीन के सब्र जमील की दुआ की। पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीराबाद के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी जावेद नायाब लगारी, पार्टी रहनुमा इमामुद्दीन शौकीन और दीगर रहनुमाओं ने भी लवाहिकीन से मुलाकात करके
ताज़ियत की। सिंध पुलिस का महकमा स्पेशल ब्रांच अपने ही पेटी बंद भाइयों के काले करतूत खोलने लग गया है। शहर में तैनात करप्ट SHOs, करप्ट हेड मोरर्स और दीगर पुलिस एहलकारों की रिपोर्ट NTN न्यूज सामने ले आए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। आरिफ हबीब बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची रेंज में तैनात साबिक और मौजूदा 58 के करीब SHO हैं और 74 पुलिस एहलकार हैं जिस पे संगीन इल्जामात हैं। स्पेशल ब्रांच की जारी करदा जुमला तरतीब करदा रिपोर्ट है और उसमें रिपोर्ट में SHOs पर 46 स्मगलिंग, गुटखा, मावा, करप्शन और झूठी FIR दर्ज करने समेत मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ SHOs का मसाज सेंटर, शीशा बार, गैर कानूनी पार्किंग और लैंड ग्रेविंग और दीगर इल्जामात भी आयद किए गए हैं। इन तमाम SHOs और दीगर जो एहलकार हैं 74 के करीब, इनके खिलाफ संगीन नोयत की रिपोर्ट बाला हुकाम को भिजवाई जा चुकी है, जबकि कुछ पुलिस एहलकारों पर रिपोर्ट में अफसरान के लिए भीड़ जमा करने जैसे इल्जामात भी आयद किए गए हैं। ठीक है आरिफ हबीब, अपडेट करने का शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली एस्टन बेकर की मुलाकात हुई। मुलाकात में अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन, पॉलिटिकल ऑफिसर जेड हॉन्सन और दीगर हुकाम शरीक हुए थे। मुलाकात में केटी बंदर प्रोजेक्ट, सैलाबी सूरत हाल, तवानाई, फूड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ताउन और सरमायाकारी से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि केटी बंदर शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मंसूबा है जिसे बहाल करने का आज़म रखते हैं। कराची पोर्ट पर दबाव कम करने के लिए मुतबादिल बंदरगाह और शाराय भुट्टो को कराची पोर्ट से जोड़ने की ज़रूरत है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि अमरीकी कंपनियां सिंध के मंसूबों में सरमायाकारी की ख्वाह हैं और आला हुकाम जल्द दौरा करेंगे। मुलाकात में थरकोल से तवानाई मंसूबों, सैलाबी तैयारी, फसलों को नुकसान, फूड सिक्योरिटी और अक़वाम मुत्तहिदा और NGOs की इमदाद पर भी बात हुई। सिक्योरिटी के शोबे MENAI NL प्रोग्राम के तहत पुलिस और जेलों की बेहतरी, तरबियत और साजो सामान की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। खुसूसी अफराद की तालीम और तरबियत और अमरीकी दारों के ताउन पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि खुसूसी अफराद की तालीम, बहाली और तरबियत के लिए हुकूमत सिंध इक़दाम कर रही है और अमरीकी दारों का ताउन हमारे लिए अहम साबित होगा। सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन और अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। सिंध मोटर व्हीकल रूल्स में अहम तरमीम की गई हैं जिनके तहत भारी कमर्शल गाड़ियों पर सख्त शराइत आयद कर दी गई हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ऐलान कर दिया है। तफसीलात जानते हैं तहा मलिक की इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक हादसात में कमी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला कर लिया। सिंध में मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम के बाद भारी कमर्शल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट, उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम लाजमी करार दे दिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि अब इंटर वेस्टर्न रूट्स पर 20 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ियों को परमिट नहीं मिलेगा। इंटरसिटी रूट्स पर 25 साल और शहरों के अंदर चलने वाली गाड़ियों के लिए 35 साल की हद मुकर्रर कर दी गई है। तमाम भारी कमर्शल गाड़ियां महकमा ट्रांसपोर्ट के कायम करदा मराकज से ही फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करेंगी। तरमीम के तहत अब हर गाड़ी में GPS ट्रैकिंग डिवाइस सामने और पिछले रुख के HD कैमरे, ड्राइवर्स मॉनिटरिंग कैमरा, 360 डिग्री कैमरा सिस्टम और अंदर रन प्रोटेक्शन गार्ड नस्ब करना लाजमी होगा। इन हालात की तस्दीक के बगैर गाड़ी न रजिस्टर्ड होगी, न फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा और न ही परमिट जारी होगा। कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में पहले मरहले में मामूली जुर्माना, दूसरे बार 2 लाख रुपए और तीसरी बार 3 लाख रुपए तक जुर्माना आयद होगा। गाड़ी आर्जी तौर पर बंद कर दी जाएगी और अगर 14 दिन के अंदर इस्लाह नहीं की गई तो रजिस्ट्रेशन मुस्तकिल तौर पर मनसूख कर दी जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक ये सख्त फैसले शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़, हादसात में कमी और ट्रैफिक निज़ाम को जदीद खुदूद पर सवार करने के लिए किए गए हैं। इनका कहना था कि कराची समेत सूबे भर में हादसात की बड़ी वजह पुरानी और नाकिस गाड़ियां हैं। अब बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और हिफाजती आलात के कोई भारी गाड़ी सड़कों पर नहीं आ सकेगी। कानून 1 साल में नाफिज होगा और इस दौरान तमाम गाड़ियों के लिए रोड वेडी टेस्ट लाजमी होगा। हुकूमत को यकीन है कि जदीद निज़ाम के निफाज से न सिर्फ ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद आसान होगा बल्कि हादसात की वजूहात जानने और शफाफ तहकीकात में भी मदद मिलेगी। कैमरा टीम के साथ तहा मलिक, कराची। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लियारी को मुकम्मल तौर पर सोलराइज करने की हिदायत दे दी है। कराची में लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में नेस्पाक ने लियारी के अस्तर नौ बहाली, सेवरेज और वाटर सप्लाई के निज़ाम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कचरा उठाने के निज़ाम से मुतालिक अपनी तफसीली सर्वे रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तरक्याती मनसूबाबंदी के दौरान मुस्तकबिल की बढ़ती आबादी की ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखा जाए। उन्होंने हिदायत की कि लियारी के अंदरूनी इलाकों में भी पीपल्स बस सर्विस चलाई जाए ताकि आवाम को बेहतर सफरी सहूलतें मुयसर आ सकें। इजलास में सूबाई वज़ीर बल्दिया सईद गनी, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह, जमील सोमरो, जावेद नागोरी, जुनेद जैदी,
लियारी ट्रांसफॉर्मेशन अथॉरिटी के डायरेक्टर फहीम चाचड़ और म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद ND खान समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुतहरिक हो गई। जिला शर्की में मुख्तलिफ थानों की हदूद में से 23 मुलजिमान जबकि पुलिस मुकाबले समेत दीगर कार्रवाइयों में 11 मुलजिमान गिरफ्तार किए। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। कराची पुलिस जराइम के खात्मे के लिए कोशा। गुज़िश्ता 24 घंटों में ईस्ट पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 24 मुलजमान धर लिए, जिनमें स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मनीशात फरोश और दीगर मुलजमान शामिल हैं। सोराब गोड में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि सुरजानी रहीम गोड में आपसी झगड़े में 12 अफराद जख्मी हो गए। उधर SIO पुलिस ने मनीशात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम पोश इलाकों में मनीशात फरोख करता था। गुज़िश्ता शब रात गए गुलशन इकबाल में वाक़ कायम सॉफ्टवेयर हाउस में मुबैना तौर पर लड़की को कैद कर दिया गया। कैद लड़की ने अहले खाना को फोन करके मदद के लिए बुलाया। अहले खाना के पहुंचने पर सूरत संगीन हो गई और सॉफ्टवेयर हाउस के मालकान ने लड़की के अहले खाना पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से इलाके में खौफ राज फैल गया। पुलिस ने बर वक्त मौके पर पहुंची और लड़की को बाइसाब करा के फायरिंग करने वाले मुलजमान को हिरासत में लेके थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में सॉफ्टवेयर हाउस के मालकान भी शामिल हैं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम रुकने को कराची के अवाम के साथ बड़ा धोखा करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार का कहना था कि ये मंसूबा चंद माह में मुकम्मल होना था, लेकिन 18 सितंबर को अचानक रोक दिया गया। इल्ज़ाम आयद किया कि मेयर कराची ने NOC ना होने का जवाब पेश किया, हालांकि NOC महज कागजी ज़रूरत है। अगर NOC नहीं था तो भी मंसूबे को बंद नहीं किया जाना चाहिए था। फारूक सत्तार का कहना था कि ग्रीन लाइन मंसूबा MQM के सर जाना था, जो कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ, इसीलिए BRT पर काम रोकने का बहाना बनाया गया। उनका कहना था कि K4 समेत कई मंसूबे ऐसे हैं जो सिंध हुकूमत मुकम्मल ना कर सकी। 25 अरब रुपए का मंसूबा 150 अरब तक पहुंच चुका है, मगर आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत रेड लाइन के मंसूबे में भी फंसी हुई है। फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी और मेयर कराची पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अगर वो कोई काम सीधे तरीके से कर लें तो उनके लिए हज़ारों डॉलर इनाम रखना चाहिए। उनका कहना था कि कितने ही मंसूबे ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी के दौर में अधूरे रह गए, मैं इन सब की फहरिस्त पेश कर सकता हूँ। और इस हवाले से तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। कहा कि MQM की सियासी हकीकत सबके सामने है और झूठे मैंडेट पर सियासत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। उन्होंने कहा जिन रहनुमाओं का माजी सिंध सियासत और दबाव की सियासत से जुड़ा हो और जिनका मुस्तकबिल दूसरों के रहमो करम पर हो, उनके दावे महज अल्फाज की हद तक महदूद है, इनमें कोई वजन नहीं। सादिया जावेद ने कहा MQM गुज़िश्ता 10 बरसों से वफाकी हुकूमत का हिस्सा रही, मगर कराची के ने कोई खातिर खामली इक़दाम सामने नहीं आए। MQM की सियासत सिर्फ नारो बयानात प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद रही, जबकि अमली कारकर्दगी के मैदान में इनका किरदार ना होने के बराबर है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को एक ही रोज में दूसरी बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। PIA को बरतानिया ने कार्गो ऑपरेशन के बाद मुसाफिर परवाजों की भी इजाजत दे दी। बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA को थर्ड कंट्री ऑपरेटर का फाइनल लाइसेंस जारी कर दिया, जिसके बाद PIA को बरतानिया से बाकायदा तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त मिल गई है। PIA हुकाम के मुताबिक फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ पहले मरहले में मैनचेस्टर एयरपोर्ट से किया जाएगा। आइंदा 1 माह के अंदर अंदर फ्लाइट ऑपरेशन बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। एशिया कप में शानदार बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान के लेग स्पिनर इब्रार अहमद की T20 के टॉप 5 बॉलर्स में एंट्री हो गई और 12 दर्जे तरक्की के बाद चौथे नंबर पर आ गए। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की 2 दर्जे तरक्की के बाद 25वीं और हारिस रऊफ की 9 दर्जे तरक्की के बाद 28वीं पोजीशन है। ICC ने T20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। ICC T20 बॉलर्स की रैंकिंग में पहले नंबर पर भारत के वरुण चक्रवर्ती और दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की जैकब डेफी हैं, जबकि तीसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन ब्राजमान है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।